Let us start our class टॉप 15 इंटरनेशनल बॉडीज और ऑर्गेनाइजेशंस। अगर हम 2023 की बात करें, इंडिया रिमेन्ड एट सेंटर स्टेज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। फ्यू डेज बैक हमने G20 समिट की मेजबानी की। एससीओ समिट भी इंडिया में हुआ। फिर इंडिया गेस्ट कंट्री रहा G7 हिरोशिमा समिट में। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नाउ लेट अस स्टडी। फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज यूनाइटेड नेशंस, जिसका पर्पस है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। अगर हम इसका हेडक्वार्टर्स देखें तो ये न्यूयॉर्क में है। एंड एज ऑफ नाउ इट हैज 193 रिकॉग्नाइज्ड मेंबर स्टेट्स। तो ये भी फैक्ट हमें याद रखना है। नाउ लेट अस सी टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। अगर हम प्रिंसिपल ऑर्गन्स की बात करें तो ये 6 है, बट इसमें से यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल नहीं है। So the correct option is option 3. Next is which of the following is not a permanent member of the United Nations Security Council. अगर हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो इसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। दैट इज रशिया, चाइना, यूएसए, फ्रांस एंड यूनाइटेड किंगडम। बट इसमें से इंडिया नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 एंड यू कैन सी द आंसर्स. So these are the 6 principal organs of the United Nations. First is UN General Assembly, second is UN Security Council, third is Secretariat, fourth is UN ECOSOC, fifth is International Court of Justice, and sixth is Trusteeship Council. And this you can read it on your own. Now see these two practice questions. First is which of the following is not a specialized agency of the United Nations. अगर हम यूएन की बात करें तो इसकी 17 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, बट डब्ल्यूटीओ इसमें से नहीं है. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 4, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. तो ये हमें याद रखना है. सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर देयर इन इंडिया. So the correct option will be 40. 32 are cultural, 7 are natural, and 1 is a mixed site. So you can see the explanations. Now, this is the list of 17 specialized agencies that you have to remember from exam point of view with its headquarters. जो headquarters मैंने mention किए हैं, these are very important. तो ये तो हमें याद ही रखने हैं कम से कम. Next question is which of the following statements is not correct about International Court of Justice and International Criminal Court. First, ICJ is the principal judicial organ of the United Nations, while ICC is neither an office nor an agency of the United Nations. हमने पिछली स्लाइड में देखा कि ICJ एक one of the 6 principal judicial organs है, so this is correct. Second is both ICC and ICJ are situated in Hague, Netherlands. This fact is also correct. Third is India is not a party to Rome Statute along with US and China. This is also correct. Last option is both ICJ and ICC have jurisdiction to prosecute individuals. No, ICJ's jurisdiction is limited to UN member states only, and ICC jurisdiction is to prosecute individuals. So the fourth option is wrong, and you can see fourth option. This is the difference between ICJ and ICC. This you can read it on your own. These are just simple facts, so you can read it. Next question, which was recently in the news, is about UN Commission on the Status of Women. So the question is which of the following is not correct about UN Commission on Status of Women. So first option is it was established in 1946 and is a functional commission of UN ECOSOC. So this option is correct. It consists of one representative from each of the 45 member states elected by ECOSOC for 4 years. This is also correct. Recently, Iran was suspended from the commission. So yes, recently Iran was suspended. This is also correct. Last option is India supported the suspension of Iran. No, India abstained. So that's why it was in the news. क्योंकि India ने abstain किया था इसमें से. So you can see the fourth option is not correct.
सो द रीजन आई एम डिस्कसिंग दिस क्वेश्चंस बिकॉज लास्ट 6 मंथ्स में ये सब चीजें न्यूज में रही हैं, सो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। फर्स्ट ऑप्शन इज, यहाँ पे हमें करेक्ट बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज यूएनएचआरसी रिप्लेस्ड द ह्यूमन राइट्स कमीशन इन 2008। नो, it replaced the UN Human Rights Commission in 2006. So the first option is wrong. Second option is the UNHRC has 47 members serving for 3 years. So this option is correct. Correct answer for this option is option 2. No, but now let us see option 3 and 4 also. It passes binding resolutions. No, the resolutions are non-binding. So this option is also wrong. Last, the Universal Periodic Review mechanism review all the 192 UN member states every 2 years. No, it do every 4 years. So this option is also wrong. Next question is which of the following is correct about UN Statistical Commission? So this question is important for India because India has been elected for a 4-year term beginning January 1, 2024. I've already told you the answer, so the correct answer will be option 4. But let us see the other options also. So it was established in 1947, first option. Second option, its headquarters is in New York, not in Washington DC, and it consists of 24 members, not 15 members. So it is important because India chairmanship मिली है January 1 से for 4 years. Next, which country has partnered with UN to roll out Unite Aware platform? The correct answer for this question is India. And you can read the explanation part. Next organization is 18th G20 Summit 2023. In the image is Bharat Mandapam. यहीं पे रिसेंट समिट हुआ था G20 का और पूरे वर्ल्ड का फोकस इंडिया पे था एंड प्राउडली इंडिया ने सक्सेसफुली ये समिट करवाया. So the practice question is which of the following statement is not correct about G20? First option, the presidency of G20 is supported by a troika made of the current, immediate past and future host countries. This option is correct. इसमें पिछले साल इंडोनेशिया ने किया था, इस साल इंडिया ने किया है एंड नेक्स्ट ईयर ब्राजील. सो इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राजील ट्रोइका. सेकंड ऑप्शन को हम बाद में देखते हैं, पहले थर्ड ऑप्शन पे आते हैं. देयर आर 12 अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशंस इन G20. यस, देयर आर 12 ऑर्गेनाइजेशंस लाइक बिजनेस 20, B20 बोलते हैं हम इसे, यूथ 20, Y20, C20, कम्युनिटी 20, ऐसी 12 अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशंस है. सबको हमें नहीं याद रखना है बट एटलीस्ट ये याद होना चाहिए कि 12 ऑर्गेनाइजेशंस हैं. थर्ड इज डी ऑप्शन इज द थीम ऑफ G20 दिस ईयर इज वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर. यस, it is based on the principle of Vasudhaiv Kutumbakam. So now let us come to option B. The G20 has a permanent secretariat. No, G20 don't have a permanent secretariat or office. So the second option is wrong. And you can see the explanation part. So this is the sum of all important facts like 1999 में start हुआ था फाइनेंस मिनिस्टर्स और गवर्नर्स की मीटिंग, फिर 2008 से शुरू हुआ था हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट्स का समिट. राइट नाउ मेंबर्स 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन थे एंड नेक्स्ट ईयर G20 प्रेसिडेंसी ब्राजील के पास रहेगी. अगर हम इस साल G20 इंडिया आउटकम्स की बात करें तो फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अफ्रीकन यूनियन एक परमानेंट मेंबर बन चुका है एंड नाउ वी हैव 21 मेंबर्स, 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन प्लस अफ्रीकन यूनियन. एंड न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन was adopted with consensus. इस पे एक सिंपल सा स्टेटमेंट बन सकता है एग्जाम में अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हुआ कि न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन वाज अडॉप्टेड विद कंसेंसस, सो दैट स्टेटमेंट विल बी करेक्ट. तो इसको भी याद रखना है. थर्ड इज इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर. ये भी G20 में ही अप्रूव हुआ था बट इसकी डिटेल्स अभी आनी बाकी है.
तो हम इसको जब डिटेल्स आएंगी तब पढ़ेंगे। लास्ट इज ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ये भी G20 के दौरान ही हुआ था। एंड एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि 9 कंट्रीज वर गेस्ट कंट्रीज। इसको एक बार रीड कर लेना, बट इतना तो याद रखना है कि 9 कंट्रीज थी गेस्ट कंट्रीज। नेक्स्ट इज द 49th G7 समिट ऑफ 2023। ये समिट हिरोशिमा जापान में हुआ था एंड इंडिया वाज अ गेस्ट कंट्री, तो इसीलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। 50th समिट ऑफ G7 इज टू बी हेल्ड इन, सो इसका करेक्ट आंसर है इटली। 50th समिट इटली में होगा, तो ये भी याद रखना है। एंड यू कैन सी 1975 में ग्रुप ऑफ 6 बना था, यूएस, यूके, वेस्ट जर्मनी, इटली, फ्रांस एंड जापान। एंड 1976 में कनाडा को इंडक्ट किया था। 1998 में रशिया को ऐड किया गया था, बट क्रीमियन क्राइसिस की वजह से 2014 में रशिया को सस्पेंड किया था। सो राइट नाउ G7 हैज 7 members that are US, UK, Germany, Italy, France, Japan and Canada. So like G20 it doesn't have a permanent secretariat, so ये भी फैक्ट याद रखना। नेक्स्ट इज द 15th ब्रिक्स समिट, जो कि लास्ट मंथ जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था। एंड ब्रिक्स के 5 मेंबर्स हैं, रशिया, इंडिया, चाइना, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, तो ये भी हमें याद रखना है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। लेट अस सी दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ब्रिक्स? द करंट प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिक्स इज विद चाइना। लास्ट स्लाइड में हमने देखा है कि साउथ अफ्रीका में हुआ था, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। करंट प्रेसिडेंसी साउथ अफ्रीका के पास है। The idea of BRICS was given by Jim O'Neill in 2001. This is correct. Fortaleza Declaration of 2015 led to New Development Bank. No. Fortaleza Declaration of 2014 that led to New Development Bank. And the last is New Development Bank has 9 members. No. Currently it has 8 members and Uruguay's accession is not done. So you can see the explanation. Now, the most important outcome of this summit was addition of 6 new members. You can see Egypt, Iran, UAE, Ethiopia, Saudi Arabia and Argentina. These will be new members effective 1st Jan 2024. तो ये भी हमें याद रखना है। एंड नेक्स्ट ईयर ब्रिक्स की जो प्रेसिडेंसी है वो रशिया के पास है, ये भी एक फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट इज द 23rd SCO समिट 2023, जो कि रिसेंटली इंडिया ने चेयर किया था, बट ये वर्चुअल हुआ था। एंड SCO फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, बट वो हुई थी गोवा में। ये भी 2 चीजें याद रखनी है कि हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग वर्चुअल हुई थी और फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग गोवा में हुई थी। नाउ लेट अस सी दिस 2 क्वेश्चंस। SCO Summit 2024 is to be held in which of the following country? The correct answer will be Astana, which is in Kazakhstan. तो 2024 का समिट वहीं पे होगा। Next is which of the following is SCO's cultural and tourism capital? So the correct answer is Varanasi. तो ये भी 2 फैक्ट्स हमें याद रखने हैं। Now you can see the timeline. 1996 में SCO 5 बना था, 2001 में उज्बेकिस्तान एडमिट हुआ था, एंड इंडिया और पाकिस्तान 2017 में परमानेंट मेंबर्स बने थे, एंड 2023 में ईरान became full-time members. So the total number of countries in the SCO are now 9. तो ये भी हमें याद रखना है। इसका सेक्रेटेरिएट बीजिंग में है, एंड इसकी प्रेसिडेंसी हमने पिछली साइड में क्वेश्चन में देखा कि कजाकिस्तान को मिली 2024 के लिए, एंड रेस्ट यू कैन रीड। नेक्स्ट इज BIMSTEC, Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. This is an initiative of 7 countries. Now let us see the question. Which of the following statement is not correct about BIMSTEC? इसमें हमें not correct बताना है। It consists of 7 member states. Yes. स्टार्टिंग में 4 members से स्टार्ट हुआ था in the year 1997, बट उसके बाद 3 members और ऐड हुए थे, and then 7 member states थे। Its permanent secretariat
is in Dhaka, Bangladesh. Yes. Fifth summit was held virtually in 2022 in Sri Lanka. ये भी correct है. Recently, India has decided to opt out of BIMSTEC. No, it was just a rumor. India अभी भी BIMSTEC में है. And you can see 1997 में 4 countries थी, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड. 1997 दिसंबर 1997 में म्यांमार ऐड हुआ था एंड 2004 में नेपाल और भूटान ऐड हुए थे. एंड 2004 में ही इसको रीनेम किया गया था एज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन. एंड द करंट चेयर इज श्रीलंका. तो ये भी हमें याद रखना है. अगर हम सार्क की बात करें तो सम पीपल से it is in a state of coma, neither dead nor fully alive, because 2016 के उरी अटैक्स के बाद इंडिया पुल्ड आउट ऑफ द समिट विच वाज टू बी हेल्ड इन इस्लामाबाद एंड फिर उसके बाद कोई समिट नहीं हुआ. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिर्फ ये ही याद रखना है कि कौन कौन सी कंट्रीज है इसमें और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है. तो कंट्रीज आप लोग देख सकते हैं कि 8 मेंबर स्टेट्स हैं: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका. और इसका हेडक्वार्टर्स काठमांडू में है. तो ये 2 फैक्ट्स तो हमें याद रखने हैं. नेक्स्ट इज द रिसेंटली हेल्ड 42nd एशियान समिट 2023 जो कि इंडोनेशिया में हुआ है और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जो कि इंडिया एशियन समिट था. और इसके 10 मेंबर स्टेट्स हैं. यू कैन सी म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस. Which country is in principle admitted to be the 11th member of ASEAN? Yes, recently टाइमोर लेस्टे, जिसे हम ईस्ट टाइमोर भी बोलते हैं, इसको इन प्रिंसिपल एडमिट किया गया है एज 11th मेंबर. बट अभी ये फुल टाइम मेंबर नहीं बना, इसने एज ए ऑब्जर्वर ही पार्टिसिपेट किया था रिसेंटली. नाउ यू कैन सी 1967 में बैंकॉक डेक्लेरेशन आया, 5 मेंबर स्टेट्स थी और इसका सेक्रेटेरिएट जकार्ता इंडोनेशिया में है और नेक्स्ट ईयर ये लाओस में होगा. एंड यू कैन सी 20th इंडिया एशियन समिट जो कि रिसेंटली हुआ है इस सितंबर में ही, जकार्ता में हुआ था और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अटेंड किया था. तो ये भी हमें याद रखना है. नेक्स्ट इज द नेटो समिट ऑफ 2023 जो कि विल्नियस लिथुआनिया में हुआ था. एंड रिसेंटली फिनलैंड वाज इंडक्टेड एज 31st मेंबर स्टेट. मैंने इसी पे क्वेश्चन बनाया था, विच कंट्री वाज रिसेंटली इंडक्टेड इनटू नाटो. सो यू कैन आंसर फिनलैंड, 31st मेंबर स्टेट. एंड यू कैन सी 1949 में नाटो बना था वॉशिंगटन डीसी में और इसका हेडक्वार्टर्स ब्रसल्स में है. नेक्स्ट ईयर ये समिट वॉशिंगटन डीसी में ही होगा. एंड इसकी 3 एक्सरसाइजेस भी होती हैं, दैट आर बाल्टॉप्स, स्टेडफास्ट नून एंड कोल्ड रिस्पॉन्स. ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये हमें याद रखना है. अगर हम नेटो की बात करें तो इसके रिस्पॉन्स में वार्सा पैक्ट बना था जो कि सोवियत यूनियन का था. बट 1991 में सोवियत यूनियन डिसॉल्व हो गया था, तो वार्सा पैक्ट भी उसी के साथ लैप्स कर गया था. उसके बाद आया कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन विच इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 6 मेंबर्स. यू कैन सी अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, जिसका हेडक्वार्टर मॉस्को में है. तो अगर हम देखें वेस्ट के लिए नेटो है और रशिया और यूएसएसआर के लिए सीएसटीओ है. तो ये भी हमें याद रखना है. नेक्स्ट इज द गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जिसमें 6 मेंबर स्टेट्स हैं, दैट आर सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई एंड ओमान. इसमें हमें यही याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. नेक्स्ट इज द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. रिसेंटली पाकिस्तान वाज रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रे लिस्ट. सो इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में. सो इट इज अ ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंशियल वॉचडॉग जिसके 39 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया. 37 मेंबर स्टेट्स हैं प्लस गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जो हमने पिछली स्लाइड में देखा, प्लस यूरोपियन कमीशन भी इसका एक मेंबर है. और आप देख सकते हैं कि एफएटीएफ की जो ब्लैक लिस्ट होती है उसमें 3 मेंबर्स हैं, नॉर्थ कोरिया, ईरान एंड म्यांमार. तो ये भी तीनों याद रखना है. एक सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द एफएटीएफ ब्लैक लिस्ट. एक तो ये 3 ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें एक ऑप्शन और डाल देंगे, दैट विल बी रॉन्ग.
Next is the Organization of Islamic Cooperation. So it is the second largest intergovernmental organization after UN, having 57 member states, not India. ये याद रखना है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, and it is spread over 4 continents. अगर हम इसके परमानेंट सेक्रेटेरिएट की बात करें, वो है सऊदी अरेबिया जेडा में. तो ये भी हमें याद रखना है. नेक्स्ट इज द 18th नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसे हम नैम बोलते हैं, जो कि हुआ था बाकू, अजरबैजान में. विच कंट्री इज द करंट चेयर ऑफ नैम? इसका करेक्ट आंसर है युगांडा. नेक्स्ट ईयर जो समिट होने वाला है वो युगांडा में होगा. एंड यू कैन सी 1955 में एशिया अफ्रीका बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुआ था इंडोनेशिया में. 1961 में फर्स्ट नैम समिट हुआ बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में. इसका भी कोई फॉर्मल सेक्रेटेरिएट नहीं है. और इंडिया में ये समिट हुआ था 1983 में, इंदिरा गांधी के टाइम पे. एंड द करंट चेयर इज युगांडा. 2024 नेक्स्ट ईयर में 19th समिट होगा. ये भी हमें याद रखना है. नेक्स्ट इज द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस. दीज आर द मेंबर्स, मोस्टली फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज. 56 मेंबर्स है इसमें. इसका हेडक्वार्टर्स लंदन में है. रिसेंटली टोगो एंड गैबन इसके मेंबर्स बने थे 2022 में. इसका जो करंट चेयर है वो रवांडा है, पॉल कगामे. नेक्स्ट एंड द लास्ट इज क्वाड एंड I2U2. ये देख सकते हैं आप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान एंड इंडिया, ये 4 कंट्रीज क्वाड बनाती हैं. क्वाड, और इसे हम बोलते हैं इंडो पैसिफिक क्वाड. आइडिया दिया था 2007 में शिंजो आबे ने. फर्स्ट समिट यूएसए में हुआ था वर्चुअली. सेकंड समिट 2022 जापान में हुआ था. और थर्ड समिट एक्चुअल में ऑस्ट्रेलिया में होना था, बट प्रेसिडेंट बाइडेन की कुछ इशू की वजह से ये समिट जापान में हुआ. एंड नेक्स्ट ईयर ये समिट इंडिया में होगा. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है. सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है कि क्वाड का 2024 का समिट कहाँ पे होगा? ये इंडिया में होगा. नेक्स्ट इज I2U2, और इसे हम बोलते हैं मिडल ईस्ट क्वाड. इसकी 4 कंट्रीज है, इंडिया, यूएसए, इजराइल एंड यूएई. तो ये चारों कंट्रीज बाय हार्ट हमें याद रखनी है. So that's it for top 15 international bodies or organizations. If you like the video, please share, subscribe, and comment your feedback. Thank you.